So what is the secret hair transplant technique? So at Divine we are doing a lot of long hair transplant. Long hair क्या है? जैसे मैं हूँ, मेरा माथा थोड़ा सा वाइड है और मेरे बाल लंबे हैं. I have this long hair and even in the donor area I have reasonably long hair. Now मुझे, आई एम अ डॉक्टर, मुझे कल आई हैव टू ऑपरेट इन अ हॉस्पिटल, आई हैव टू मीट पीपल. मैं आई विजिट वन डॉक्टर जो कि FUE स्पेशलिस्ट है, एंड दैट डॉक्टर सेज कि मुझे आपके ना बाल ही ट्रिम करने पड़ेंगे, इधर से ट्रिम करने पड़ेंगे, एंड आप कैप पहन लेना 2 वीक्स, आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड आई टेल हिम दैट नॉट पॉसिबल बॉस, आई कैन नॉट ट्रिम माई हेयर, मैं बाल कैसे काटूँ, नॉट पॉसिबल. मतलब मेरी एक इमेज है एंड पूरा यहाँ पे रेड रेड दिखेगा और मैं बाल काट के जाऊँगा, तो व्हाट विल पीपल थिंक? So then he says, okay, ऐसी तो कोई टेक्निक ही नहीं है which can be done. Then I visit someone else, वो ये कहते हैं कि there is something called secret hair transplant or long hair transplant technique. And I ask him क्या होता है ये? In the long hair transplant technique, वो मुझे समझाते हैं कि आपके इन्हीं एग्जिस्टिंग बालों के अंदर से ही बाल निकाले जाएंगे, उन बालों को एक एक करके सेपरेट किया जाएगा and they will be implanted one by one, and long hair as long as this will be implanted in the front, and you will have a better hairline जिसमें all the hair that is transplanted is as long as this. Now just imagine the beauty of that. मतलब कि मेरा transplant भी हो गया and 2 या 3 दिन बाद I go to office, I meet people and no one even comes to know कि मेरा hair transplant हुआ है. Just imagine the magic, and that is what is the long hair transplant, जो कि हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हमको करते करते. And this long hair transplant is absolute magic, and it is for those people जो वैल्यू करते हैं अपनी लुक्स को, वो कैप नहीं पहनना चाहते. इट इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्निक, इट इज़ नॉट एज ईजिली अवेलेबल एज द कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक, जो कि वर्चुअली आज के दिन एवरीबडी इज डूइंग. डेंटिस्ट कर रहे हैं, होम्योपैथ कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स कर रहे हैं, टेक्नीशियंस कर रहे हैं. बट नो, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कैन ओनली बी डन बाय extremely experienced and well trained plastic surgeons, and very few people are able to do long hair transplant technique world over. The closest person who does it apart from me in India is in Dubai, जिन्होंने सलमान खान का ट्रांसप्लांट किया. The average cost of long hair transplant in Dubai is about 25 to 30 lakhs. Of course, in India it is not that expensive, it is much cheaper, but we'll talk about that later. So I hope कि मैं hair transplant के concept को, long hair transplant के concept को आपको समझा सका. How is it different from conventional hair transplant techniques? कि long hair transplant बाकी hair transplant technique से अलग कैसे? बहुत simple, very simple. एक भी बाल काटेंगे नहीं, not even one hair is cut, not even one hair is trimmed. That is the key thing behind long hair transplant technique. That means आपकी looks preserved रहती है. In no other hair transplant technique does your look stay preserved. मतलब हर hair transplant technique में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाल कटेगा, ट्रिम होगा, शेव होगा, कैप पहननी पड़ेगी. But long hair transplant, the basic thing is that not even a single hair is cut. And after 3 or 4 days, आप ऑफिस जाएंगे, फैमिली फ्रेंड से मिलेंगे, किसी के पास भी यू मीट, नो वन विल कम टू नो दैट आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया. सो दैट इज वेयर इट इज डिफरेंट. आपका डोनर साइट इज मेंटेन्ड, यहाँ की डेंसिटी कम नहीं होती, जो चाहिए आपको हेयरलाइन मिल जाएगी. एंड दिस लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक से जो आपके हेयर ग्रोथ होगी वो आपको 15 से 20 साल और मे बी समवॉट उससे भी लॉन्ग वो रह सकती है. So that is the beauty of the long hair transplant technique, and that is how the long hair transplant technique is different. Bigger or more difficult in long hair transplant techniques. क्या recovery longer होती है long hair transplant technique में? Absolutely not. It is the same recovery as all other hair transplant techniques, and in fact in long hair transplant आप 3 दिन के बाद ऑफिस जाएंगे, no one will come to know that you've had a transplant. So I think that way it's magical because you don't have to announce to anyone कि आपने long hair transplant technique किया है, that you have done hair transplant for that matter, which means कि suppose you are a politician, suppose you are a public speaker, suppose आप मैच मेकिंग कर रहे हैं, आपकी शादी होनी है, आप लड़की से मिलने जा रहे हैं, suppose आपका कोई पब्लिक इवेंट है, स्टेज पे आपको बोलना है, लॉयर है, कोर्ट जाना है, पायलट है, प्लेन उड़ाना है, डॉक्टर है, पब्लिक से मिलना है, एनीथिंग, फ्राइडे को हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए एंड मंडे मीट एनीवन ऑन अर्थ एंड नो वन विल नो कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया. So that is the magic of long hair transplant technique. Will people be able to tell कि hair transplant हुआ है आपका कि नहीं? So in long hair transplant, no one can ever know कि आपने hair transplant किया है after 3 or 4 days. आपने once transplant is done, उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद आप जब जाएंगे अपने ऑफिस में, no one will come to know.
So all the ladies, if your husbands are looking for hair transplant and वो बताना नहीं चाहते किसी को, this is the time, this is the technique that you have to do for get your husband for a long hair transplant. So does a long hair transplant hurt more or less compared to conventional hair transplants? के long hair transplant technique में दर्द ज़्यादा होता है या कम होता है? So ऐसा नहीं है. all hair transplant techniques will have 1 to 2 days of pain. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेनलेस होता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक हफ्ते तक पेन चलता है. All hair transplant techniques will have 1 to 2 days of pain. उसके बाद hardly anyone takes painkillers. So what this means is कि once you do a long hair transplant technique, after 2 days और sometimes even एक दिन के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया. लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में टाइम कितना लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डू अ लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. सो एक एवरेज ट्रांसप्लांट से 5 से 6 हज़ार बाल अगर हम कर रहे हैं, 2500 to 3000 ग्राफ्ट, करीब करीब 6 से 7 घंटे लग जाते हैं. जो कन्वेंशनल एफयूटी टेक्निक है हमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, 2.5 to 3 hours. बट लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्स मोर देन डबल. वाई इज दैट? बिकॉज उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है. एक एक बाल, कभी कभी तो यहाँ पे पूरे बाल होते हैं, उसके बीच बीच में हमको डेंसिटी क्रिएट करनी है. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. प्लस वी डोंट हैव द लिबर्टी टू कट हेयर, हम काटते नहीं हैं. वी हैव टू कीप सर्चिंग फॉर स्मॉल स्मॉल स्पेसेस. इवन पीछे से बाल लेना इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. एवरीथिंग takes much longer time, and that is why it is very difficult. And जो सर्जन है आपके, he has to be extremely experienced. जो टीम उनको असिस्ट कर रही है उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का. लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप कब सर्द हो सकते हैं, कलर कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. सो स्टाइलिंग एंड ऑल आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 3-4 वीक्स रुक जाए. हेयर कट 3-4 हफ्ते बाद कर सकते हैं. कलरिंग अगेन आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 3 वीक्स रुक जाए, नॉट बिफोर दैट. एंड वॉशिंग तो हम 3 डेज के बाद रिकमेंड कर देते हैं. एक्सरसाइज आप 10 दिन के बाद कर सकते हैं. साइकिलिंग है, स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी 3 वीक्स के बाद रिकमेंड करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक. इज द कॉस्ट ऑफ अ लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट मोर देन कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट? यस, एब्सोल्युटली. व्हाई? वन, ओनली प्लास्टिक सर्जन्स कैन डू इट. एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक टेक्नीशियन नहीं कर सकता. होम्योपैथ, आयुर्वेद नहीं कर सकते. ओनली अ प्लास्टिक सर्जन कैन डू इट. There's a lot of time involved. पूरा दिन लग जाता है ट्रांसप्लांट करने में. जो लर्निंग कर्व है ट्रांसप्लांट का, इट इज़ मच लॉन्गर देन कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स. तो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी इंट्रिकेट, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेटिकुलस है, मैग्निफिकेशन में करना पड़ता है. दैट मीन्स डॉक्टर की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्वमेंट इज मच मोर, एंड देयरफॉर द कॉस्ट इज मच मोर कंपेयर टू अ कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक. तो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट तभी करें जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं. सेकेंडली, जो आपको ज़रूरत है. जब आप मेरे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए, आई आस्क यू वेदर यू नीड इट. बिकॉज अगर आपको लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, देन वी डोंट रेकमेंड कि आप उस पर अपने पैसे वेस्ट करें. यू कैन हैप्पीली डू द कन्वेंशनल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक विच इज़ मच चीपर इन कॉस्ट. Who is a candidate for long hair transplant technique, and can women do hair transplant using the long hair transplant technique? Absolutely. It's a beautiful question. Who is a candidate? Even women can do long hair transplant technique. In fact, women में it is more useful because अगर लेडीज में हमने आगे की तरफ शेव कर दिया तो छोटे छोटे कांटे की तरह बाल लगा दिए, वो 6 महीने घर से बाहर नहीं निकल सकती. यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने शेव करके अगर कर दिया 6-8 months लग जाएंगे that to get that hair growth, and therefore long hair transplant assumes more significance in women because हमने इतने लंबे बाल लिए, यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, एंड वो अपने नॉर्मल बालों के साथ उसको मर्ज कर लेगी, पता भी नहीं चलेगा. So that is why in women long hair transplant is more important. But candidates, जो ideal candidates हैं, doctors, senior lawyers, pilots, politicians, जो stage पे जिनके regular shows होते हैं, actors, news readers, basically anyone जो चाहते ही नहीं कि किसी को पता चले, CFOs, CTOs, etc. etc. So these are the people जो नहीं बताना चाहते किसी को that they have done a transplant. एंड वो नहीं शेव्ड लोग, पूरी वो ब्लड की वो जो शेव्ड एंड अगली लोग नहीं चाहते. दे वांटेड टू बी एस्थेटिक, दे डोंट वांट पीपल टू नो दैट आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया. हेयर ट्रांसप्लांट, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का डज द रिजल्ट चेंज ओवर टाइम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक यूजिंग द एफयूटी टेक्निक इज द ओनली टेक्निक इन द वर्ल्ड जहाँ पे ना बाल ट्रिम किए जाते हैं ना कट किए जाते हैं, एंड 15 to 20 years तक रिजल्ट रहता है, मे बी इवन लॉन्गर. बिकॉज एफयूई टेक्निक से अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो विद इन 5 to 7 years आपके 30 से 40% बाल गिर जाएंगे, बिकॉज 30 to 40% ऑफ द हेयर इज टेकन फ्रॉम नॉन परमानेंट जोन. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप एफयूई कर रहे हैं आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. अगर आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ हेयर, 5000 बाल तक आप निकालेंगे कोई इशू नहीं, उससे ज़्यादा निकालेंगे नॉन परमानेंट जोन में जाएंगे,
एंड दैट मीन्स फ्यूचर में आपके बाल गिर सकते हैं. सो डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर जिसके साथ आप बहुत हैप्पीली एफयूई करना चाहते हैं, एंड स्कार नहीं आएगा जो कि झूठ है, पेन नहीं होगा जो कि झूठ है. तो ये आपको गाने सुनाए जाते हैं अबाउट एफयूई टेक्निक, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. एफयूई करते ही यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू लाइफ लॉन्ग एंटी टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद फॉलिंग ऑफ सम अमाउंट ऑफ हेयर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. क्या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल गिरते हैं? सो येस, इनिशियल ट्रांसप्लांट के बाद 4 से 6 हफ्ते में जो ट्रांसप्लांटेड हेयर 80% ऑफ देम विल फॉल ऑफ एंड 3 मंथ्स लेटर दे विल ग्रो ऑफ. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर गिरने हैं तो व्हाई डू इट, क्या फायदा? तो आंसर इज वेरी सिंपल. डू यू वांट कि आपका पूरा एरिया शेव कर दें? नहीं. डू यू वांट कि किसी को पता ना चले? येस, दैट इज वेयर लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट वर्क्स. व्हाई? हमने लंबे बाल लगा दिए, ट्रांसप्लांट कर दिया, बाल ग्रो कर गए, किसी को पता नहीं चला. ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बाल गिरेंगे, थोड़े थोड़े करके, एंड जब थोड़े थोड़े करके बाल गिरेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा आपके बाल गिरे, एंड आफ्टर अ वाइल दे स्टार्ट टू ग्रो एंड बिकम कंप्लीटली नॉर्मल.